Good morning, children. Today we are going to start new chapter of your class, that is chapter 11, perimeter and area. In the previous video, I have shown you what is the basic difference between the term perimeter and area and what are the different formulas of finding perimeter of different shapes. Like mainly in the first exercise which we will be discussing today, we will be discussing two shapes mainly. One is rectangle and one is square. So if I will talk about perimeter of a square, it is having four sides. Perimeter means boundary. Okay, so I have to add all the four sides of the boundary, side plus side plus side, and the direct formula is 4 into side. Similarly for rectangle, perimeter is length plus length, breadth plus breadth, that is 2 multiplied by length plus breadth. सो पेरीमीटर के दो फॉर्मूले याद रखने हैं. रेक्टेंगल का है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का क्या है 4 इंटू साइड. सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट एरिया, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. वन मोर थिंग, पेरीमीटर इज वन डायमेंशन. Why it's one dimension? Because only length is included in this. ठीक है, सिर्फ इसमें हम लेंथ करते हैं इसलिए इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होती है. Whereas area is two dimension. Why it's two dimension? Because in this both length and breadth comes into play in the formula. ठीक है, दोनों length और breadth का यूज होता है. And unit also, unit of area is centimeter square or meter square, because in this centimeter when I will multiply length and breadth, तो length का centimeter और breadth का centimeter भी multiply होगा, so it will become centimeter square. Okay, so now let's discuss some of the questions. I will just mention the formulas like 2 into length plus breadth, 4 into side. This is for rectangle and this is for square. Okay, this is for perimeter and area की अगर मैं बात करूं, so this is length into breadth and this is side into side. So these four formulas basically we will be using in exercise 11.1. Now first of all look at first question. First question is very simple. The length and breadth of a rectangular piece of land. इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम. मतलब क्वेश्चन को पढ़कर जो भी पिक्चर आपके दिमाग में आती जाए उसको ड्रॉ कर लो साथ ही साथ विद पेंसिल. रफली यू कैन ड्रॉ. ओके, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. सो इन माई माइंड आई हैव अ पिक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. ओके, एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 500 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 300 meter. Okay, this is the picture. Length is 500 meter and breadth is 300 meter. You can write length of rectangular land, breadth of rectangular land. Okay, then find. It is having two parts. First part, find its area. Now since it is rectangle and area of rectangle is length into breadth. So area of rectangle, first of all write down the formula. बिकॉज फॉर्मूला कैरीज हाफ मार्क्स. अगर आपका ये जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो सिर्फ फॉर्मूला लिखने के ही आधे नंबर है. देन 500 मीटर इंटू 300 मीटर, दैट विल बी 5 3s are 15, 1 2 3 4 zeros मीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ द लैंड. अब हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है. If 1 meter square of the land cost rupees 10,000. देखो पूरा लैंड इतना है. Cost of 1 meter of square as per the question, cost of 1 meter square of land is rupees 10,000. ठीक है, कितना है? 10,000 है. So next I will find out cost of 15. It's not 15, 1,50,000. Okay, 1,50,000 meter square of land. What I will do? I will multiply. So 1,50,000 multiplied by 10,000 rupees. 1 और 5 तो आ जाएगा, पूरे जीरो काउंट कर लो. इसके 4 और इसके 4, 8 जीरो. ओके, 3 2
ठीक है, आपको ये अमाउंट ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट दिस विल बी योर आंसर। ओके, सिमिलरली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। देखो पिक्चर क्या दिमाग में आई, स्क्वायर पार्क है, मतलब चारों साइड इक्वल है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क था। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, एरिया पूछा गया है, ठीक है, निकालना दिया क्या हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। देखिए पूछा गया है एरिया बताइए, और दिया क्या हुआ है, सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा हमसे, एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए, लेकिन साइड तो दिया नहीं हुआ है। साइड की जगह क्या दिया है मुझे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, और पेरीमीटर आता कैसे है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड करके। सो पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड एंड दिस इज इक्वल टू 320 मीटर. So from this given perimeter, first of all I will find out the side. Okay. Now this 4 is in multiply. It will go to another side and become divide. So side is equal to 80 meter. ठीक है, साइड हमारा निकल गया. अब एरिया निकालना आसान है. Now we will come to main question. देखो इसमें बोला नहीं गया था साइड निकालो, इसमें क्या पूछा गया है, एरिया निकालो. पर एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, साइड चाहिए. और साइड कैसे निकल रहा है हमारा, जो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द फॉर्मूला. 80 मीटर इंटू 80 मीटर. ओके. अब देखिए यूनिट का खास ध्यान रखिए, मीटर के ऊपर ये पावर अगर आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. इफ एरिया इज आस्क्ड देन यूनिट शुड हैव द पावर. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एरिया. देखो ये साइड था, तो साइड कभी स्क्वायर में नहीं होगी. साइड इज अ काइंड ऑफ लेंथ, सो इट शुड बी इन मीटर. 80 इज 6400 मीटर स्क्वायर. ठीक है, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर. अगर ये मीटर प्लस मीटर होता देन इट विल रिमेन मीटर. प्लस करने पे यूनिट चेंज नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने पे वो एज अ पावर लग जाएगी. ओके, सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. ठीक है, अब हमें दोबारा पता चल गया किस टाइप का प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल. So we have to find the breadth. This is breadth. This we have to find out. Rectangular plot of land. If the area is, now area is given 440 meter square and the length is 22 meter. This length is 22 meter. Also find its perimeter. पहले तो breadth निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, perimeter. तो क्वेश्चन को पढ़ के जो जो चीजें आपके दिमाग में आई, जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया. फिर ब्रेथ पूछा है, फाइंड द ब्रेथ, सो आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क. देन एरिया इज गिवन इन द सेंटर. देन लेंथ एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑल्सो. नाउ सी, पहले जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे. क्या दिया हुआ है, एरिया. एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ लेंथ इज गिवन, एरिया इज गिवन. एरिया और लेंथ गिवन है, वी कैन फाइंड आउट द ब्रेथ. ओके, सो हाउ आई विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 22 मीटर, ब्रेथ आई विल टेक इट एज बी. तो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 440 को डिवाइड करेंगे 22 से. यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है. आपको रीजन समझ में आ जाएगा दैट व्हाई ब्रेथ विल कम इन मीटर. नाउ दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, मीटर इंटू मीटर. सो आउट ऑफ 2 1 विल बी कैंसल्ड, ओनली 1 मीटर विल बी लेफ्ट. सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर. नाउ दिस इज ब्रेथ. By using this breadth, I can find out perimeter now. So perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. 2 into, पहले length और breadth को plus करनी पड़ेगी हमें. Length is 22 and breadth is 20. So 2 into 42.
2 into 42, that will be 84 meter. Okay, so in this way we can find out the perimeter also. Now question number 4th is the perimeter of a rectangular sheet. अब जो क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ लेआउट बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. पेरीमीटर है किसका है? रेक्टेंगुलर शीट का है. अगेन इट्स रेक्टेंगल. डायग्राम बनाते जाइए. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री, सम ऑफ ऑल दीज बाउंड्रीज. इफ द लेंथ इज 35, लेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ. अब देखिए यहाँ पे एरिया और लेंथ दिया था तो हमने ब्रेथ निकाला. अब इस क्वेश्चन में पेरीमीटर और लेंथ दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? ब्रेथ निकाल सकते हैं. सबसे पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो 100/2 कितना आ जाएगा? 50. फिर लेंथ जो है वो ब्रेथ के साथ प्लस में है तो लेंथ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी. 50 माइनस 35. So as per direct calculation, breadth will come as 15 सेंटीमीटर. एक बार जब आपकी ब्रेथ निकल जाएगी फिर पूछा also find the area. Then we can find out the area also. Area will be length into breadth, 35 into 15. तो इसको आप लोग खुद करेंगे. And the next questions we will discuss in our next class. Thank you children.